topic of today's session is congruency and similarity. So what is congruency? So congruent objects or congruent figures or congruent triangles are the shapes which are identical in every aspect. Means their all sides must be equal, their all corresponding sides must be equal, their all corresponding angles must be equal, their area, or if they are object then their volume must be equal. So they are identical in all forms. So that thing, that shapes or that figures are called congruent, right? So in triangles, how many components do we have in triangles? We have 6 components of any triangles, 3 sides and 3 angles. So when we talk about congruent triangles, so it's mean that in congruent triangles, uh, all 3 sides of first triangle is equal to the all 3 sides, all corresponding 3 sides of second triangle, and all 3 angles of first triangle is equal to the all 3 corresponding angles of second triangle. So in this one, 2 triangles are given. So जो triangles जो sides single line से mark हैं वो दूसरी वाली single line के साथ congruent हैं. Like SU is marked by 1 line and RY is marked by 1 line. So SU RY के equal है. And SN is marked by 2 lines and AR are marked by 2 lines. So ASN AR के equal है. And NUAY के equal है because both sides are marked by 3 lines. Okay, now when we talk about congruency, so it doesn't mean कि congruency सिर्फ triangles पे apply होगी. It can be applied on polygons और कोई और shape हो जाएगा quadrilateral, तो उनके ऊपर भी congruency apply होती है. And the logic will be same कि तमाम corresponding sides equal होंगी और तमाम corresponding angles equal होंगे और area जो shape का होगा वो भी equal होगा. Okay, so we have different postulates to prove congruency of triangles. If 2 triangles are given and we have to prove that whether these 2 triangles are congruent or not, so हम कैसे prove करते हैं? So first postulate to prove the congruency of 2 triangles is SSS. So SSS is representing side, side, side. So this postulate explains that if 2 triangles are given in such a way that 3 sides of first triangle is equal to the 3 corresponding sides of second triangle, then these 2 triangles are called equal. So congruency prove करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स को इक्वल प्रूव करें. सो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अगर आपने पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग 3 साइड्स को 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रूव कर दिया, सो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. इट्स मीन कि उनका एरिया भी बराबर होगा और उनके एंगल्स भी बराबर होंगे. Okay, now second postulate is side angle side. So this postulate explains that if 2 sides of triangle is equal to the 2 corresponding side of other triangle and one including angle is equal to the corresponding including angle of other triangle, then these 2 triangles are congruent. So note here the theorem is SAS. In this one A is written between 2S, यानी कि दोनों साइड्स के बीच में A एंगल है. सो जो एंगल होगा दैट मस्ट बी इंक्लूडिंग, वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, ये वाला, दैट वन द मार्क आई दैट द एंगल आई मार्क विद रेड. सो यहाँ पर ये वाला सही है. एंड द थर्ड पोस्टुलेट इज AAS और ASA.
In this one, this explains that if two angles of first triangle is equal to the two corresponding angles of other triangle, then these two triangles are called congruent, and one side with one corresponding side of other triangle. Okay, for example, in the given figure, two triangles are given, and one side, AR side, is equal to LY side. So if the angle opposite to the side is equal to the angle opposite to the side, and this angle, angle A, is equal to this angle, then this will be equal. Okay, now we are practicing some question from past paper, but before starting this question, one thing is need to be clear. This is about the AAA. So there is no such postulate, angle, angle, angle. So, okay, Nimra, I will. So angle, angle, angle का कोई postulate नहीं होता. Angle, angle, angle normally हम similarity को prove करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होते, राइट. सो कभी कभी एग्जाम्स में हम ये मिस्टेक कर जाते हैं, जब हमें कुछ साइड नहीं मिल रही होती तो हम तीसरा एंगल को बराबर प्रूव करके हम एंगल 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 के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं. सो तीनों एंगल्स से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती. ओके, नाउ in this one a triangle LMN is given, and in this triangle is further divided into more triangles by line MQ and PN. So हमें जो वो इसके अंदर जो चीज गिवन है वो ये है कि एंगल LMQ, this angle is equal to this angle and is equal to this angle and this angle. These all four angles are equal. ये हमें given है. Now by using this information we have to show that triangle LMQ is congruent to triangle LNP. हमने जो तीन लॉस पढ़े उनमें से किसी एक लॉ को हम यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स इक्वल हैं. सो LMQ is this triangle and LNP is the other triangle, this one. ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को मिलकर जो वो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है. सो हमारे पास अब हम चेक करेंगे कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल हमारे पास गिवन है, क्या क्या चीज हम इक्वल ले सकते हैं. इसके अंदर हमारे पास एक चीज तो ये है जो कि एंगल L है. एंगल L इज इक्वल टू एंगल L जो कि दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है. सही है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? और इसके बाद आपके पास एंगल M एंगल N के बराबर ये क्वेश्चन में गिवन है. LMQ और LNP. ठीक है, अब दो एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर दिए. अब अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है तो तीसरा एंगल आप नहीं ले सकते, आपको लाजमी अब एक साइड चाहिए. सो अब बताएं कौन सी साइड किसके बराबर होगी. सो इन दिस वन हमें सबसे पहले पूरे ट्राइंगल को देखना होगा जो हमारे पास कंप्लीट फिगर है. इन दिस वन ये अगर मैं एंगल जो पूरा एंगल होगा, अगर ये मेरे पास x से छोटा वाला एक मार्क, अगर ये x है तो ये दूसरा भी x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा. तो ये जो m एंगल होगा वो n एंगल के बराबर हो जाएगा, विच इज मेकिंग दिस बिगर ट्राइंगल आइसोसेलेस. सो LM LN के बराबर हो जाएगा, राइट. सो अकॉर्डिंग टू AAS these two triangles are congruent. रोहान आपको क्लियर हो रहा है? राहिम?
Now in part B, we have to show that triangle MPN is equal to triangle MQN. So in this one, हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं, तो उसके अंदर एक एंगल ये होगा ब्लू वाले ट्राइंगल का और एक रेड वाले ट्राइंगल का एंगल ये होगा. ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, सो ये दोनों इक्वल होंगे. अगर ये x है तो ये भी x होगा. ये आपको समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट पार्ट से आपने निकाला है. LMQ और LNP टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो उनके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. और जो ग्रीन एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा x का दोनों तरफ, तो 180 माइनस एक्स दोनों तरफ आएगा. So 180 माइनस एक्स आ जाएगा. Okay, now part C. What is the special name of quadrilateral LPRQ? This quadrilateral is a kite. Okay, good everyone. Okay, now we are moving towards the similar figures. So what is the difference between similarity and congruency? Right, so in similar figures, sides are proportional, and in congruent figures, sides are equal. Okay, any other difference? Haris? Yes, Haris, size. Size is different in similarity. In congruency, two shapes must have equal size. And in similarity, two shapes must be of different size. वो एक जैसे शेप तो होंगे, बट उन दोनों का साइज सेम नहीं होगा. For example, if the first triangle is a right angle triangle, so second भी right angle triangle तो होगा, but the area will be different. So sides भी proportional होती हैं, उनका size भी different होता है. Congruency में size भी same होता है. So similar figures are the figures in which sides are proportionals, angles are equal. So अगर दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है तो हम कैसे प्रूव करते हैं? इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और आपको ये प्रूव करने के दो सिमिलर्स हैं, सो आप इनको कैसे प्रूव करेंगे? सो आपके पास दो मेथड है इनको सिमिलर प्रूव करने के. राइट फातिमा, द फर्स्ट मेथड इज टू टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स. अगर तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. सो रिमेंबर कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपने लेना है. एंड राइट इतिका, गुड. एंड द सेकंड मेथड इज टू कंपेयर द एंगल्स. अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. तो एंगल्स इक्वल प्रूव करने से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती, बट सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है. So for example, these two triangles are similar, and the dimensions of these two triangles are given as blue. The dimensions of blue triangles are 10, 8 and 6, and the dimensions of red triangles are 5, 4 and 3. अब हमें देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है. तो हम कैसे देखेंगे? यस, गुड आयशा. सो हम इनकी साइड्स का रेशियो लेंगे. सो व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स, so it's 5/10. First side का ratio that must be equal to 4/8. Second side का ratio and that must be equal to 3/6. Third side का ratio. तो ये तीनों ratios हमारे पास 2 आ रहे हैं, which means कि दोनों triangles congruent हैं. Any confusion with this? Okay, now this is a question taken from the past paper, and in the part A we have to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. So now, how can we explain that whether these two triangles are similar
and or not similar, but your answer must be supportive by the mathematical expression or mathematical calculation. Yes, they are not similar because when we take the ratio of the corresponding sides, so it's 4.5 over 3, the ratio of first corresponding side. This will be equal to the ratio of second corresponding side, which is 9 over 6. So इन दोनों का रेशियो आपके पास 3/2 आ रहा है. But when you take the ratio of the second side, it's 8 over 4, जो कि 3/2 नहीं बल्कि 2 आ रहा है. So ये अनइक्वल हो जाएगा. ठीक है. So that's why these two triangles are not similar. So कभी कभी हमारी मिस्टेक ये हो जाती है कि हम दो साइड्स का रेशियो निकालते हैं, देखते हैं वो इक्वल है तो तीसरी साइड को छोड़ देते हैं. और अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सिमिलर ट्राइंगल्स डिक्लेयर कर देते हैं just by taking the ratio of first two sides. ठीक है. So these two triangles are not similar. Okay, now in the second part we have to find the value of x. Okay, इसके अंदर देखते हैं हम कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये कैसे पता चलेगा. So C L is corresponding to P and M is corresponding to Q. And R is corresponding to N. सही है. सो अगर आपने R Q लेना है तो आपको जो साइड होगी वो दूसरी वाली N M लेनी पड़ेगी. तो R Q साइड आपके पास है X जो आपने मालूम करनी है, और N M साइड आपके पास है 4.2, और दूसरी साइड आपको PQ गिवन है विच इज 5. तो PQ की कॉरेस्पॉन्डेंस LM के साथ है, सो द वैल्यू ऑफ LM इज 3. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 7 आएगी. सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ द साइड्स. तो अगर ये आपको ट्राइंगल गिवन है और इन दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनके अंदर अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 5/10 स्क्वायर which will be 1/4. Corresponding Nimra. So you may take whether you take 8/4 or you take 3 and 6, आपके पास आंसर सेम ही आएगा बिकॉज रेशियो जो साइड्स का है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो तो सेम होगा. तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं क्योंकि रेशियो तो सेम आना है ना. तो तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा. So in this one a quadrilateral is given, and in this quadrilateral two sides are given parallel. The first side is AB and the second side is CD, and the length of side CX is given 8 and side AX is given 10, and the length of side BD is given 27. अब आपको BX की लेंथ निकालनी है. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये कौन सा केस बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंसी का केस बन रहा है या सिमिलैरिटी का केस बन रहा है. गुड. सो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ये 10 है और ये 8 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल ही हैं. तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये सिमिलैरिटी का केस बनेगा, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं बनेगा. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखेंगे कैसे बन रहा है तो ये देखें, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट हो गया. ठीक है. एंड पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट बनेगा और ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट बनेगा. ठीक है. तो आपने देख लिया कि ये सिमिलैरिटी हो रही है. ओके, नाउ सिमिलर ट्राइंगल्स है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये साइड मालूम करनी है BX, ये वाली साइड X है, बट ये वाली साइड भी आपको नहीं मालूम ना, दूसरी वाली साइड भी नहीं मालूम. तो अब कैसे करेंगे आप?
ओके, जो डिटेल आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल BD is 27 and BD side is actually the sum of two side which is BX and XC. So BD को आपने 27 ले लिया, BX को आपने X ले लिया और प्रॉब्लम XC साइड का है जो आपको नहीं मालूम. So XC will be equal to 27 minus X. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? So ये आपके पास 27 ये आपके पास 27 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है एवरीवन? So the answer of part A is x over 27 minus x is equal to 10 over 8. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. ओके सॉरी, इस xd, ये xd है. ओके, नाउ फॉर सेकंड पार्ट आपको दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए. तो आप कौन सी दो साइड, आप कौन सी साइड्स को न्यूमरेटर में लेंगे? So, जिन दो साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट वन इज Cx एंड XA और न्यूमरेटर में हम Cx को रखेंगे बिकॉज BXC ट्राइंगल का एरिया AXD से निकालना है. सो इस 8 over 10 स्क्वायर. When we talk about the ratio of the volume, so the ratio of the volume is equal to the cube to the ratio of the sides. And in this one, two buckets are given. The diameter of the base of small bucket is 8 and the diameter of the large bucket is 16. Height of the large bucket is 30 while we have to find out the height of the small bucket. So small bucket की height आप कैसे निकाल सकते हैं? H over 30 बन जाएगा. Okay. ट्रिक ये होती है कि जो अननोन होता है ना क्वांटिटी, उसको हम न्यूमरेटर में रखें. सो 30 ओवर h भी करेक्ट होगा, बट इट इज बेटर टू कीप h इन न्यूमरेटर. सो h ओवर 30 इज इक्वल टू 8 over 16, which is making the value of h is 15. Now in B part, the volume of small bucket is given 850 cubic centimeter and we have to find out the volume of large bucket. So large bucket का वॉल्यूम VL ले रहे हैं और स्मॉल बकेट का वॉल्यूम्स का रेशियो ले रहे हैं. So that ratio is equal to cube of the ratio of side. हम हाइट भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू टेक हाइट और वी आर गोइंग टू टेक बेस. हाँ, ये मैटर नहीं करेगा, बट वी आर गोइंग टू टेक बेस. And the reason is that base, the length, the dimensions of base or the value of base are given. So अगर आपने height in case आपने mistakenly गलत calculate कर ली, so अब जो second part का आंसर आएगा वो भी गलत आ जाएगा. So that's why it is better to use those dimensions which are given in the question, ताकि mistakes के chances कम हो. So यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप height लेते हैं या base लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा. लेकिन अगर हाइट गलत कैलकुलेट करी तो आंसर गलत हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज बेस हियर. क्लियर?
Okay, now trying this question and we have around 3 minutes. So जल्दी जल्दी हम इसका फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का भी सेकंड. So ABCD ट्राइंगल है एंड इन दिस वन हमें गिवन है कि AS जो है वो QC के बराबर है और CR जो है वो AP के बराबर है. नाउ बाय दिस वन हमें PBQ को हमें ट्राइंगल RDS के बराबर प्रूफ करना है. अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास ABCD क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है तो ये एंगल 90 बनेगा और यहाँ पर ये एंगल 90 बनेगा. सही है. अच्छा, अगर मैं इसको QC को X ले लूं तो मेरे पास ये भी X आ जाएगा, यहाँ पे भी X है, ये भी X है. और ट्राइंगल की अगर पूरी साइड मेरे पास, अगर पूरी ट्राइंगल की साइड Y है तो सामने भी ये वाली साइड Y हो जाएगी, AS. सो इट्स मीन कि जो SD है वो X माइनस Y के बराबर हो जाएगा. तो SD जो होगा वो BQ के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों Y माइनस X बन जाएंगे. ठीक है. एंड सेम लॉजिक PB और DR पे लगेगी. सो जो PB की वैल्यू आएगी वही DR की वैल्यू आएगी. So this is SAS. This is not RHS. This is SAS. So राइट एंगल के अंदर जरूरी नहीं है कि वो RHS ही लगेगा, ये SAS है. जब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल बराबर होता है तो उसे SAS बोलते हैं. राइट एंगल वाले के अंदर RHS के अंदर हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी है. यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बराबर प्रूव नहीं हो रहा है. राइट. Okay, so that's all for the day.